Hi, welcome to my channel. Today topic DPSP. DPSP full form Directive Principle of State Policy. So let's start. DPSP Directive Principle of State Policy. भारतीय संविधाने आर्टिकल 36 to 51 तक डीपीएसपी के बारे में कहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from many countries like USA, France, Britain, Germany, South Africa, Russia, Japan. DPSP also borrowed from Ireland. So DPSP borrowed from Ireland. Ireland also taken from Spain. So originally DPSP स्पेन से आयरलैंड लिया, आयरलैंड से भारत इंडियन बोर्ड किया। सो डीपीएसपी भारतीय संविधाने पार्ट फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 तक डीपीएसपी बारे में कहा है। फंडामेंटल राइट्स जब वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब वायलेशन होगा आप कोर्ट पर नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी में कहा है आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। डीपीएसपी इज नॉट जस्टिसेबल। सो बेसिकली डीपीएसपी divided three types. DPSP classified three type: socialist, liberal and intellectual, and number three Gandhian principle. Classification DPSP article wise classification: socialist principle, Gandhian principle, and liberal and intellectual. Socialist, Gandhian, liberal and intellectual. DPSP classification. DPSP is not justiciable. DPSP is not justiciable. So, socialist principle. Number one, Article 38
Article 38 tells about social, political, economic justice. Social, political, খাও না তুই দে দিতাম খালি তুই খাইতে পারবো না খাই দিল খাই দিল যা পর যা আমি তুই দাম খাইতে তুই দেখতে হবে রে কে মোবাইলে তোর তুই যা Article 38 social, political, economic justice. Article 38 socialist principle is tells about social, political, economic justice. Number 2. Gender male and female. मेल फिजिकली स्ट्रांग होता है सो उसके लिए ज़्यादा पैसा देता है लेबर के लिए। तो डीपेश में कहा है आप दोनों को जेंडर मेल और फीमेल को इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट देगा। सो इक्वल वर्क नंबर आर्टिकल 39 equal pay for equal work. Equal pay for equal work. Livelihood. सेम लाइवलीहुड देना पड़ेगा। सो आर्टिकल 39 कहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। नेक्स्ट number 3 article 41 right to education, right to work, right to education, right to education। प्रेजेंट टाइम 86 अमेंडमेंट हुआ था आर्टिकल 21A। नाउ प्रेजेंट टाइम education is a fundamental right. Education is a fundamental right. So right to education, right to work. Basically स्टेट को गाइडलाइंस देता है डीपीएसपी। आप स्टेट पर कर सकते हो, ये आप कर सकते हो। सपोज किसी स्टेट पर काउ स्लॉटर जो गो हत्या prohibited but somewhere it not restricted. So article 41 tells about right to education work। स्टेट को देना पड़ेगा बट स्टेट दे तो अच्छा होगा लेकिन नहीं दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन क्योंकि आर्टिकल 37 ने कहा है इट इज ए नॉन जस्टिसेबल। तो राइट टू एजुकेशन वर्क। नेक्स्ट आर्टिकल 42 नंबर 4 आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 42 tells about maternity relief। गवर्नमेंट ऑफिसर और लेबरर मैटरनिटी जब प्रेगनेंसी टाइम पर रिलीफ के बारे में कहा है दीपेश पर कहा है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 42 tells about maternity relief। Next article 43 living wage and article 43 living wages and livelihood। आर्टिकल 43 लिविंग वेज। सपोज जो सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है
उसका लेबर आप सिर्फ इंडियन 100 रुपया दे रहे हो, तो 100 रुपया कुछ नहीं होगा डे का। सो मिनिमम वेज आपको देना पड़ेगा। सो आर्टिकल 43 टेल्स अबाउट लिविंग वेज एंड लाइवलीहुड इंक्रीज करने के लिए इसके चलाना होगा। सो मिनिमम लिविंग वेज देना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। सो सोशलिस्ट प्रिंसिपल आर्टिकल 38 कहा है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस। DPSP is a non-justiciable. DPSP is a non-justiciable. DPSP is a non-justiciable. DPSP directive principle of state policy is not justiciable. Next Gandhian principle. Article 40. Article 40 organize Article 40 basically tells about पंचायत सीरीज है, वेब सीरीज बहुत अच्छा किया है प्रहलाद ब्रद सचिव जी। इसके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर है, विनोद माधव। हम गरीब है लेकिन गद्दार नहीं। सो आर्टिकल 40 पंचायत। In India, first panchayat established Nagaur district in Rajasthan. So Article 40 tells about panchayat. Next, Article 43. Article 43 number 2. Article 43 promote. Article 43 promote cotton industry. Article 43 promote cottage industry. Next promote cottage industry. Next Article 46 number 3 Article 46 protection of scheduled caste, scheduled tribe, economic weaker section. Article 46 protection of SC, ST and EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन प्रोटेक्शन करना होगा स्टेट को। नेक्स्ट आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ। Article 47 public health. Next Article 48 dispute between religion contrary. Article 48 काउ गो हत्या निषिद्ध यहाँ पर prohibited cow slaughter. Article 48 prohibition of cow slaughter गो हत्या। यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाएगा हिंदू मुसलमान के लिए, क्योंकि काउ स्लॉटर मुस्लिम का करता है, हर
दिन। नेक्स्ट लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल কি রে কেন নাই কাগজের ক্যালকুলেটর নাই ছিল তখন না না পালা লিবারাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপাল লিবারাল এন্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রিন্সিপাল आर्टिकल 44 liberal intellectual principle article 44 tells about uniform civil code article 44 is very important article 44 uniform civil code in India बहुत सारे रिलीजन है हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चियन है so every religion have every rule so article 44 entire इंडिया एक रूल लाने के लिए यहाँ पर कहा है बात कहा है सो इट इज ए डिस्प्यूटेड आर्टिकल नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 44 आर्टिकल 45 टेल्स अबाउट अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन नेक्स्ट आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन नेक्स्ट आर्टिकल 49 प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट लाइक एज एग्जांपल ताजमहल विक्टोरिया मेमोरियल प्रोटेक्ट करना होगा स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेक्स्ट आर्टिकल 50 सेपरेट फ्रॉम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव इन इंडिया में लेजिस्लेटिव मेकिंग लॉ एग्जीक्यूटिव impeach law and judiciary scrutinize law so separate from judiciary and executive next article 51 promote international peace and security article 51 is very important UPSC previous question आया था article 50 आया था article 51 आया था article 40 आया था article 44 आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड so article 51 कहा है promote international peace and security सपोज बीजेपी सेंट्रल पर पावर है स्टेट पावर है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस सपोज प्राइम रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कम्स टू इंडिया वेस्ट बंगाल उस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन आएगा उस टाइम पर रोड से टीएमसी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा हम रोड शो करेंगे सो यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो रेपुटेशन था वो दिक्कत पे हो जाएगा देश के लिए इसीलिए कहा है आर्टिकल 51 पे कहा है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी सो डीपीएसपी बेसिकली स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंश्योर सो आप फंडामेंटल राइट जब वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो लेकिन डीपीएसपी जब वायलेशन होगा आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो आर्टिकल 226 के दौरान आप हाई कोर्ट एंड आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सीधा सुप्रीम कोर्ट सो डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इसका बाद आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा सो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है डीपीएसपी borrowed फ्रॉम आयरलैंड आल्सो borrowed फ्रॉम स्पेनिश सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed फ्रॉम मेनी कंट्री नेक्स्ट डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 36 to 51 नेक्स्ट डीपीएसपी क्लासिफिकेशन 3 टाइप सोशलिस्ट प्रिंसिपल गांधी प्रिंसिपल लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल सो मेरा टॉपिक डीपीएसपी नेक्स्ट टॉपिक टुमारो साला बेटा